इंटेलिगेंट, इंटेलिगेंटन, haben ist Akkusativ, na? So hätten ist auch Akkusativ. Ich hätte einen intelligenten Bruder. Ich hätte einen intelligenten Bruder. Okay. टाइम नहीं है, टाइम होता तो मम्मी पापा से मिल लिया था। काश मेरे पास टाइम होता। इस hätte Zeit. Ja. Ich hätte Zeit. काश तू मेरा दोस्त होता। काश तू मेरा दोस्त होता। Du wärest mein Freund. Du Mein Freund. Wärest mein Freund. Du wärest। सही लग रहा है ये सेंटेंस? सही लग रहा है क्या? सर वारू वेरे। ओके, आप बताओ फिर आपको क्या लग रहा है? हेटे लग रहा है? यस सर। फिर आपसे पूछेंगे हम वारूम हेटे। आप ऐसे बोल के देख लिया करो। होता क्या, ऐसे ही बोल दो कि तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या बोलोगे? यू आर माई फ्रेंड। समझ गए? अगर ऐसे बोलना हो यू आर माई फ्रेंड, व्हाट विल बी द सेंटेंस? या, डू बेस्ट माइन फ्रेंड। सो बेस्ट मीन्स रियलिटी एंड दिस इज imagination, dream. So best means sein, so that's why it is sein. समझ गए क्यों है? अगर मैं बोलूं काश मेरे दोस्त होता, काश कोई मेरे जयपुर में दोस्त होता। I wish I had a friend. Ich hätte einen Freund in Jaipur. Right. I wish I had बोल रहे तो मतलब haben आएगा। Ich hätte einen Freund in Jaipur। अब की बार haben आएगा। काश तुम मेरे दोस्त होते, तो होना। अब की बार है are। You are my friend, you were my friend, तो sein verb आएगी। कहाँ haben आएगी, कहाँ sein आएगी, उसका रियल सेंटेंस बना के देख लो, then you will be able to change in Katswai। काश मैं 3 महीने में जर्मन सीख जाऊं। काश मैं 3 महीने में जर्मन सीख जाऊं। Ich würde in 3 Monaten Deutsch lernen. ओके, किसी को कुछ और लग रहा है तो वो भी बोल सकता है। Ich würde in 3 Monaten Deutsch lernen. Anybody else? किसी को कुछ और आइडिया आ रहा है? Yunus, is it okay? सही है। Yes, very good. So whenever there will be a verb other than haben and sein, then you will use würden. ये जो würden वाला है तभी यूज करना है जब काम haben और sein से नहीं चल रहा। Any verb, kochen, bringen, kommen, lernen, suchen, versuchen, any verb, कोई भी वर्ब अगर आ गई तो फिर हमको würden प्लस इंफिनिटिव से ही बनाना है सेंटेंस कात्स्वाई का। अदरवाइज कुछ पाने की बात हो, you want to have something, then haben and you want to be something,
then sein. Das ist normal. Okay. Das ist haben und können, sollen und müssten. Sehr gut. Müssen, ना? जनरली मोडाल वर्ब से आप अगर कातस्वाई बनाओगे, जनरली मोडाल वर्ब से कातस्वाई बनाओगे तो इन तीन का दिखेगा आपको, क्योनन, जोलन, म्यूशन, एंड कातस्वाई फॉर्म विल बी क्योंटन, जोल्टन, म्यूस्टन. This is the normal modal verb, and here now Kyonten, Zolten, Müssten. This is not preteritum, past नहीं है ये. This is Katswai. Okay. Ich könnte, du könntest, es, sie, wir, ihr, sie und sie. Ich könnte, du könntest, es, sie könnte, wir könnten, ihr könntet und sie könnten. Ich sollte, du solltest, sie sollte, wir sollten, solltet, sollten. Müsste, ich müsste, du müsstest, es, sie müsste, wir müssten, ihr müsstet und sie müssten. Okay. So diese drei werden Sie immer wieder sehen eigentlich. ये दिखेंगे आपको बार बार mit Modalverb könnte, normalerweise können. अब hier ist alles dann. Katswai bedeutet also Vorschläge, Ratschläge machen. Ratschläge, Vorschläge means advice, किसी को advice देना. Jolten, müssten. Hier und hier. Was ist der Unterschied? Jolten und müssten. Jolten, du solltest Yoga machen. तुमको योगा करना चाहिए. Ich fühle mich heute müde. थका हुआ हूँ. आप बोलोगे du solltest heute früher ins Bett gehen. थके हुए हो, सो जाओ, आप जल्दी चले जाओ सोने. Du solltest dich ausruhen. Du solltest ein Glas kaltes Wasser trinken. Du solltest, आप मेरे को सलाह दे रहे हो. Solltest. Du sollst भी बोल सकते हो. What is the difference? Solltest is more polite. Past. No, it's not past. Past तो लिखा ही नहीं यहाँ. Past भी हो सकता है, but advice में past कहीं का. This is polite form. Polite form. Jolten is more polite. जहां जहां आप जोलन बोलते हो ना, वहां वहां जोल्टन बोलना शुरू कर दो. लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा. Because it is more polite. जैसे आप मान लो मैं फोन किया, मैंने फोन मिला दिया. मैंने बोला कि आंटी जी दिव्या से बात करनी थी. क्यों बोलता हूं मैं? बात करनी है बोलना चाहिए ना मुझे. लेकिन हम लोग क्या है, पोलाइट बनने की कोशिश करते हैं कि आंटी जी बात नहीं कराएंगी तो थोड़ा पोलाइटली बनाऊं, अच्छा दिखूं उनको कि बढ़िया अच्छा लड़का है, करा दो इसकी बात. दिव्या से बात करनी थी का मतलब आपकी बड़ी महानता होगी अगर आप बात करा दोगे तो. ये पोलाइटली बोलते हैं हम लोग. ये पास्ट नहीं है बात करनी थी.
भले ही मैं थी बोल रहा हूं लेकिन ये पास्ट नहीं, ये पोलाइट है तरीका बोलने का। यहां भी मैं बोलूं डू जोल टेस्ट, आपको करना चाहिए, तो इतने दिल से आदमी बोलता है तो फिर सामने वाला मना भी नहीं करता। ये पोलाइट बोलने का यही तो कमाल है, तभी तो पोलाइट बोलना सिखाते हैं बच्चों को हम। सो हियर इट इज मोर पावरफुल, द मोर पोलाइट मोर पावरफुल। एंड हियर म्यूस्टन, म्यूस्टन इज, म्यूस्टन तो पोलाइट के लिए नहीं यूज करते, म्यूस्टन तो उस चीज के लिए यूज करते हैं जब कोई ऑप्शन ही नहीं हो आपके पास। नॉर्मल म्यूशन, इश्मूस गेन, जाना पड़ेगा, मन तो नहीं है, मे बी इश्मूस ना खाओ गेहन। अरे पापा ने बोल रखा है 8 बजे तक घर पे पहुंच जाना, नहीं घुसने नहीं दूंगा, मेरे को जाना पड़ेगा यार पार्टी में, फिर कभी मिलेंगे। इश्मूस, das bedeutet ich habe keine Option, keine Wahl, das ist ein Muss. Okay, und wenn ich sage müsste und dann warum müsste? म्यूशन बोलना है तो म्यूस्टन क्यों बोलना है? दिस इज पोलाइट। नॉर्मलाइज इन एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं या करेंगे, उनको पता है जब बॉस को काम कराना है तो वो डू मूस्ट नहीं बोलता, मूस्ट थोड़ा सभ्य नहीं लगता, लेकिन वो पोलाइटली ऐसा बोलता है कि मुझे पता है कि ये काम नहीं किया तो मेरी छुट्टी हो सकती है। वो बोलेंगे देवकरण जी आपको वो कल काम बताया था, आपने कल तो नहीं कर पाए थे, आज कर देना उसको, कल तक और आपके पास चांस है। कल तक चांस है मतलब उसके बाद क्या नया ढूंढेंगे हम आदमी? ओके, मतलब आपकी छुट्टी कर देंगे, आप कल तक कर सकते हैं भाई, कल तक आप कर दीजिएगा। वो इसके अंदर वार्निंग छुपी रहती है। You have to, you are supposed to do it by tomorrow, anyhow, you are supposed to, means you have to, ये have to ही है। म्यूशन का नेचर तो, बेसिक नेचर तो have to है ना, you must, बट बंदा पोलाइटली कह रहा है, बस इतनी बात है। हम लोग नोटिस कर रहे हैं पिछले 10 दिन से आप रोज लेट आ रहे हैं। आप अगर ऐसे ही लेट आते रहे तो इसी महीने आ पाएंगे। इसका क्या मतलब है? अगले महीने से तो आप ऑफिस ही नहीं आ पाएंगे, राइट? लेट कहां से आ पाएंगे, है ना जी? म्यूस्टन या माल्फ, साइक्लिस्ट कॉमन, वो पोलाइट ही बोलेगा, गाली नहीं निकालेगा, डांटेगा भी नहीं, लेकिन ये वर्ड यूज कर लिया तो समझ जाओ उसमें वार्निंग छुपी हुई है। जी म्यूस्टन हियर आइडेंटली साइक्लिस्ट कॉमन। सो इसमें धमकी छुपी रहती है, बंदा प्यार से बोलता है बट धमकी छुपी रहती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। म्यूस्टन पोलाइटली क्यों पोलाइटली क्यों बोलना चाहता है? वो झगड़ा भी क्यों लेगा भाई आपसे? उसको ऑफिस में काम कराना है आपसे, झगड़ा क्यों करेगा आपसे? आपको बता दिया कि ये काम आपको करना है, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं नया ढूंढेंगे हम लोग। हम लठ बजाने के लिए नहीं है यहाँ पे, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बात प्यार से ही बोलेगा वो आपको, बट इट इज एज पावरफुल एज मस्ट। But this is the polite form. Katzwei means polite form. Katzwei polite form. Und Kyonen polite form. Politely कहने के लिए इनको भी यूज कर सकते हैं, राइट? बट मेनली किसी को सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये ऑर्डर इस तरीके से प्यार से देगा। ऑर्डर भी सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर की जनरली ये मोडाल वर्ब्स कहते हैं अपन। हैटे भी उसी टाइप का है। आप किसी रेस्टोरेंट में हो, आप कहते हो इस हैटे ein Glas Wasser bitte। इस हैटे का मतलब है आई वुड लाइक टू। हैटे और म्योस्टे इज ऑलमोस्ट सेम, बट दिस इज स्टिल पोलाइट। म्योस्टे खुद भी कात्सवाई वाला ही मामला है। ओके, फर्स्ट टाइम जी क्योंटे कुड यू प्लीज, कुड, शुड, Ich habe eine Frage. बिtte schon। So, könnten, sollten, they are also used as past tense for modal verb? That is without umlaut. That would be without umlaut. Konnte. Okay. Past so this form. is the difference. Only Yes. Umlaut. If Yes, umlaut umlaut is not difference. Here also umlaut is the difference. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पास्ट और पोलाइट में, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में ही पता चलेगा। there. Alright, sir. Thank you. ओके, सो सपोज कोई बोलता है पोलाइटली
कुड यू प्लीज डू मी ए फेवर, पोलाइटली है ना, कुड यू प्लीज, könnten Sie bitte mir einen Gefallen tun, könnten Sie bitte mir einen Gefallen tun, könnten Sie, तो इतना पोलाइट है कि करने वाला काम है तो आदमी करता ही है उसको. Könnten Sie, könnte ich bitte Ihren Kuli nehmen? Ja, gerne. Sicher. Könnten Sie, could you, could, should, and könnten is also, zum Beispiel mein Chef fragt mich, Chef means boss, Devkaran, ich bin hier neu in Jaipur, ich habe am Wochenende 2 Tage frei, was kann ich tun? मेरे बॉस ने पूछा, मैं नया आया हूँ जयपुर, 2 दिन है वीकेंड में, यार कुछ बताओ क्या करूँ मैं यहाँ. तो मैं बोलूँगा आपके पास टाइम हो तो आप हवा महल जा सकते हो, आप या फिर जंतर मंतर चले जाओ या चौकी ढाणी चले जाओ शाम को. ये 2-3 जगह देखने की है सपोज. तो मैं क्योंटे बोलूंगा बॉस के लिए, जी क्योंटन, मतलब कभी कभी ऑप्शंस के रिगार्डिंग, ऑप्शंस किसी को बताने हो उसके लिए भी जी क्योंटन. एंटवेडर ऑर्डर, ये डबल कनेक्टर सिखाऊंगा आपको मैं, ये अभी तक तो थे नहीं A1 A2 में, ये अभी आएंगे. आइदर यू कैन डू और दिस entweder könnten Sie zu Chokidani gehen oder zu Hawamahal. Das sind gute Möglichkeit. Dankeschön. मैं जोल्टन नहीं कहूंगा कि आपको जाना चाहिए. You could. ऑप्शन है ना आपके पास, ये यहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो चाहो तो, राइट. सो ऑप्शन के रिगार्डिंग भी आप क्योंटन, और पोलाइटली बोलना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो क्योंटन. सजेशन के रिगार्डिंग generally Zoltan. Und this is a must, but polite form. Ist das klar bis jetzt? Okay. Am Wochenende sollten wir das, sollten wir बोला मैंने, am Wochenende sollten wir das auch richtig üben. हमको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए. सजेशन, रिक्वेस्ट इनकी. Noch Katzoi ist noch ein bisschen. Zum Beispiel, Katzoi bedeutet, also Vorstellung. Katzoi bedeutet vielleicht Wish. कभी कभी wish unfulfilled रह जाती है, wish पूरी नहीं होती ना. Katzoi हुआ क्या कि मेरे दोस्त ने बोला वीकेंड में आ रहा हूं. मैंने टिकट खरीद ली कि वीकेंड में आ रहा है, इतने दिन बाद में तो आ रहा है मेरा भाई दोस्त, फिल्म देखेंगे. आई बुक्ड टू जो इन राज मंदिर सिनेमा में, हाँ ओके, पीपली लाइव करके फिल्म लग रही थी, मेरे दोस्त के साथ देखूंगा. सो कात्स्वाई aber ist nicht gekommen, ist nicht gekommen. वो आता तो यार हम फिल्म देख लेते, लेकिन वो तो आया ही नहीं. उसको तो छोड़ो, डॉक्टर टाइम पे आता तो दादाजी बच जाते. ना डॉक्टर टाइम पे आया, ना दादाजी बच जाते. अब बचते कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन मेरे ये हो गई इस डॉक्टर के कारण, बिगड़ा है काम. डॉक्टर साहब आते तो, मेरा दोस्त आता तो हम फिल्म देख लेते. ये सोच ही तो रहा हूं मैं. दिस इज ऑल इमेजिनेशन, right? But regret is also there. If there is a regret in imagination, you should use Katzwei this form. Hätten und wären. Hätten, wären. Ich, du, er, es, sie. Wir, okay, wir müssen das nicht alles noch einmal. Wir können einfach vielleicht von hier. Ja. Vielleicht hier können wir. Okay, लिखने की जरूरत नहीं है.
Ich habe gesagt, wenn der Arzt gekommen wäre, wäre mein Opa nicht gestorben. स्टैर्बन का पेशवाई क्या होता है? स्टैर्बन, gestorben ना, gestorben होता है. स्टैर्बन पेशवाई gestorben und kommen पेशवाई gekommen. अनकॉमन का है वो तो जो आप बता रहे हो. कॉमन gekommen, स्टैर्बन gestorben. ओके. एसन पेशवाई gegessen. क्लार. हुआ क्या? Der Arzt ist nicht zeitlich gekommen. डॉक्टर टाइम पे आए ही नहीं. Der Arzt ist nicht zeitlich gekommen. Mein Opa ist gestorben. डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार गए. लेकिन डॉक्टर आता तो नहीं सिधारते, ऐसा मुझे लगता है. सो इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे, इमेजिनेशन प्लस रिग्रेट, ऑलवेज यू विल यूज wäre, wäre plus P2 und hätte plus P2 for regret, Bereuung. रिग्रेट जिसमें पश्चाताप है, अब कुछ नहीं करा जा सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? when, क्योंकि अगर आते तो कंडीशन भी तो होगी, आते तब बचते ना. सो when der Arzt zeitlich, ये तो नहीं आए लेकिन आते तब काम बनता. when der Arzt zeitlich gekommen wäre, Komma, wäre mein Opa gestorben. wäre mein Opa nicht gestorben. देखो, फैक्ट कुछ और है और हम कुछ और चाहते हैं. फैक्ट तो ये है दादाजी अब नहीं है. फैक्ट तो ये है ये डॉक्टर टाइम पे नहीं आया. तो अगर ये टाइम पे आता, नहीं आता तब मरते या आता तब मरते? अगर आता तो बचते ना. सो आता तो बचते, इसका मतलब एक तो इसमें से निष्ठ हटाओ, तो आता तो यहां पे तो मर गए, नहीं मरते, इसमें निष्ठ लगाना पड़ेगा, इससे तो हटाना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा. सो वेन डेर आर्स्ट साइटलिश gekommen wäre mein Opa nicht gestorben. मेरा फ्रेंड सैटरडे को शाम को आ जाता तो हम फिल्म देख लेते. फिल्म देखना, जेन का पेशवाई gesehen. So now make one more sentence. When mein Freund am Samstag gekommen wäre, sehr gut. gekommen wäre, हम फिल्म देख लेते. हाबन चाहिए देखने के लिए या जाइन चाहिए? हाबन, यस. हैटन वियर
einen Film gesehen. तो हम फिल्म देख लेते हैं. सो ये कात्स्वाई हो गया. सो 3 चीजें बताइए मैंने कात्स्वाई में आपको. रिग्रेट we will express with wären P2 und hätten P2. Wäre, hätte. It will be conjugated of course according to the subject. So das ist Regret. Und hier haben wir Modalverben nur 3. Diese brauchen wir für Höflichkeit. Höflichkeit means politeness. Höflichkeit. These all three we use for Höflichkeit. Und hier haben wir über Wünsche. Ja, über Wünsche gesprochen. काश मेरे पास ये होता, काश मैं बन जाऊं, काश मैं पक्षी बन जाऊं. Ich wäre Vogel. Ich wäre nette Person. Ich hätte BMW. Ich hätte eine bessere Kamera. Ich hätte eine Schwester. मेरी बहन नहीं है, काश मेरी बहन होती. So ich hätte eine Schwester. Example. Okay? काश मैं डॉक्टर होता. Ich wäre Arzt. क्यों नहीं हो सकता था भाई, डॉक्टर भी हो सकता था. Ich wäre Arzt. Ich wäre योगा लेयर. Ich wäre Schauspieler. मैं फिल्म स्टार होता. सो इमेजिनेशन के लिए ये, एडवाइस के लिए और Höflichkeit के लिए ये, एंड रिग्रेट के लिए ये. Wir müssen mindestens 20 Sätze. आपको एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाने. आपका होमवर्क इतना ही है, एक अपना इंट्रोडक्शन डिटेल से ऐसे लिखो खुद के बारे में जैसे निबंध लिखना है, और वो इंफॉर्मेशन जो लोग जानना चाहते हैं, जो आपकी खास बातें हैं. ऐसे मत सोचो यार मैं तो इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग. हमसे इंपॉर्टेंट तो कोई धरती पे है ही नहीं. सच तो ये है, हर किसी को ऐसे लगता है, लगना भी चाहिए. सो अपने बारे में खूब सारा लिखना है. 1 पेज लिखो, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या खास बात है अपने में, क्या बनना चाहता हूं. पूरी दुनिया को बता दो क्या बनना चाहता हूं, फिर बन के रहोगे. Haben Sie verstanden? Ja, sir. Also über diese sprechen, über diese K2 Formen.